हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ड्राई सेल, जो कि एग्जांपल है प्राइमरी सेल का। और मैंने आपको कहा था कि सेल्स होते हैं दो टाइप के, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल्स आर दोज सेल्स which cannot be recharged. When the reactants get consumed, they are no more useful. So they are known as a primary cell. In case of a secondary cells, reactants once get consumed, they can be regenerated. So they are known as the secondary cells. Actually here they can be recharged. So first of all they will get discharged and then they can be recharged. So discharge and recharge process takes place one after another. In such a kind of a cell, electric energy is stored. So that's why in such a kind of a cells we have to apply more voltage than the normal EMF of that kind of a cell. Now see, to learn more better, this is an example of a lead accumulator. I will explain you this example properly. Here is a diagram. Here lead plates are packed with spongy lead. Now see, ये जो पूरा कंटेनर है ये है एसिड प्रूफ कंटेनर, क्योंकि हम यहां पे यूज करेंगे 38% ऑफ H2SO4 एज अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. नाउ सी 38% ऑफ H2SO4 है, इसलिए हमने यहां पे लिया है एसिड प्रूफ कंटेनर. इन दिस lead accumulator, also known as a lead storage cell, anode is nothing but negatively charged, and anode consists of, you know that, number 1 and number 3. You must have seen these two, and they are nothing but lead plates packed with a spongy lead. So lead plates के ऊपर spongy lead का वापस lead होगा and they will act as anode, and cathode consists of lead plates packed with PbO2. Cathode consists of lead plates packed with a PbO2, and you must have seen that number 2 and number 4. ये जो प्लेट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, so they are nothing but lead plates packed with a PbO2, and it will act as a cathode. So several plates are there which are arranged in this manner, and these plates, they will provide larger surface area for the reaction to occur. You know that in this cell also there is an involvement of redox reaction. So now let's see how this cell works. So now we have to see the working of the cell. Now, let me tell you first of all, this 38% of H2SO4 is having a density of 1.2 grams per ml. This is the density of H2SO4 we have to use. Now let's see how this lead accumulator it works. This working we have to see while the process of discharging takes place. So discharge is a process. Now remember, this cell can work both as galvanic cell or volatile cell, and it also work as an electrolytic cell. तो हमें पहले देखना है डिस्चार्जिंग जब उसका होगा तो ये कैसे काम करेगा. जब भी इसका हो जाएगा डिस्चार्जिंग, it will work as galvanic cell.
it will work as galvanic cell. So क्या होगा इसमें देखते हैं अभी। देखिए जो है एनोड, इसमें है लेड प्लेट्स पैक्ड विथ अ स्पॉन्जी लेड। सो एट एनोड lead is get oxidized. It will lose 2 electron and then there is a formation of Pb2 plus जो कि है aqueous। क्या हुआ है यहाँ पे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इन दिस केस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Pb2 plus ions. These Pb2 plus ions from the solution, they will react with SO4 2 minus ions, जो obviously आएंगे कहां से? They will come from the H2SO4. You know that H2SO4 is a strong electrolyte. It will ionize completely, so it will produce SO4 2 minus ions, and Pb2 plus ion will combine with SO4 2 minus ion to form PbSO4. Now PbSO4 यहां पे हो जाएगा फॉर्म, yes, so solid. तो we have to write here precipitation, यहां पे हो जाएगा precipitation reaction. देखिए जितने भी Pb प्लस आयन होंगे ये SO4 के साथ में कंबाइन करेंगे और वहां पे फॉर्म हो जाएगा PbSO4. इलेक्ट्रॉन्स जो भी यहां पे रिलीज होंगे, दैट इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. अभी हमने पहला रिएक्शन यहां पे लिखा है जो कि ऑक्सीडेशन, दूसरा में हमने लिखा है प्रेसिपिटेशन. अब हम दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे. सो Pb सॉलिड प्लस यस SO4 2 माइनस एक्वस. अगर आप देखिएगा प्रॉपरली तो Pb2 प्लस इस साइड में भी है और इधर भी है, तो ये हो जाएगा कैंसल. तो यहाँ पे क्या बचेगा? Pb सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस, इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन प्लस PbSO4. सो दिस आई विल से एज नेट रिएक्शन एट एनोड. नाउ at कैथोड क्या होगा? कैथोड का कैथोड पे these electrons they will migrate towards cathode. और पता है आपको यहाँ पे क्या है? यहाँ पे PbO2 का रोल है. सो PbO2 solid, it will combine with, जैसे यहाँ पे काम आए थे SO4 2 minus ions, यहाँ पे इधर इस केस में कैथोड के केस में H प्लस आयन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस होगा. H प्लस आयंस obviously will come from the H2SO4 and that's why PbO2 plus H plus ions plus electrons. So there is a formation of Pb2 plus ion. Remember यहाँ पर भी Pb2 plus ion ही यहाँ पे फॉर्म होंगे. Pb तो दिख रहा है हमें और हमें लगता है यहाँ पे H है और O है, तो obviously water can be obtained as a byproduct. Water is obviously in a liquid state. ये जो है ये यहाँ पे ऑक्सीजन आपको दो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ पे मुझे दो लिखना पड़ेगा. ओके, एंड नाउ हियर विल बी 4H प्लस आयन. अगर आप बात करोगे चार्जेस की तो यहाँ पे 4H प्लस है, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन. सो द नेट चार्ज ऑन दिस साइड इज 4 minus 2 is plus 2. And same here is plus 2. So this reaction is balanced in terms of number of atoms as well as in terms of charges as well. So ये है इधर हुआ है ऑक्सीडेशन. सेम वे Pb2 प्लस यहाँ पे भी वही करेगा जो ऊपर हुआ था. Pb2 प्लस aqueous will combine with SO4 2 minus to form PbSO4. Like again this will is nothing but an example of precipitation reaction में
यहाँ पे मैं करेक्शन करूंगा, माफ कीजिएगा। यहाँ पे आएगा, ऊपर हुआ था क्या ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रिडक्शन। इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होगा कैथोड पे, दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। एंड हियर सो ऑब्वियसली आफ्टर एडिशन यहाँ पे Pb2 प्लस है, यहाँ पे भी Pb2 प्लस है, दोनों यहाँ पे हो जाएंगे कट। जो बचेगा ये आपको लिखने का है PbO2 सॉलिड प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस ये एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives PbSO4 solid twice H2O liquid। ये है नेट रिएक्शन एट cathode। Now this is the net reaction at anode and this is the net reaction at cathode। इन दोनों को आपको ऐड करना होगा, फिर जाके आपको मिलेगा नेट सेल रिएक्शन। दिस रिएक्शन that the net reaction at anode and net reaction at cathode, if you add, you will get the net cell reaction more easily. Now in this case also, you know PbSO4 is there, there's a PbSO4, there's a formation of twice PbSO4, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हालांकि कट हो जाएंगे, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे बाद में जाके। SO4 2 माइनस यहाँ पे भी है, इधर भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस SO4 2 माइनस, बाकी जो भी बचेगा that will be your net cell reaction। So this overall reaction अगर आप देखोगे लगता है काफी बड़ा रिएक्शन है, लेकिन समझने के बाद ये हो जाएगा काफी इजी। अभी ये हमने जो देखा है, दिस इज द वर्किंग ऑफ lead accumulator in case of discharging process। रिचार्जिंग के लिए कैसे होगा, जब हम बात करेंगे रिचार्जिंग, then this now see the EMF of the lead accumulator, its cell potential is, yes, कितना होता है इसका, yes, it's a 2 volt। The cell potential of the lead accumulator is 2 volt, but when the voltage drops up to 1.8 volt, जब ये voltage drop होके 1.8 volt तक आ जाएगा, at that time you have to recharge। recharge करना पड़ेगा इसको। कैसे करो recharge? We have to apply the more voltage than the 2 volt, and at that time the sign will get changed, एनोड एंड कैथोड के जो है यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ये जो रिएक्शन हो रहा है एनोड पे, ये होगा कैथोड पे। ये रिएक्शन जो हो रहा है एनोड पे, ये कहां पे होगा, कैथोड पे। लेकिन रिएक्शन को उल्टा लिखना पड़ेगा। ये रिएक्शन कहां हो रहा है, द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द कैथोड। नाउ इन केस ऑफ द रिचार्जिंग प्रोसेस, ये होगा एनोड पे, और इसको भी आपको उल्टा करना पड़ेगा। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आपने ये लर्न कर लिया तो अपने आप आपको रिचार्जिंग के भी रिएक्शंस लिखने आ जाएंगे। ओके, आई रिपीट, जब हम करेंगे इसका रिचार्ज, तब ये रिएक्शन कहां पे हो रहा है, एनोड पे, ये कहां पे होगा, कैथोड पे, और जो हो रहा है कैथोड पे वो कहां पे होगा, वो होगा एनोड पे। ओके, सो इन दिस मैनर वी हैव टू राइट दिस रिएक्शन। रिएक्शन तो वही लिखेंगे, लेकिन रिएक्शन को हमको उल्टा करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेड एक्यूमुलेटर। वेरी स्मॉल sort of questions they may ask you regarding the density क्या है H2SO4 का, क्या कंज्यूम होता है, कैसे फॉर्म होता है,
पीवी का रोल क्या है, यहाँ पे PbO2 का रोल क्या है, इसका वोल्टेज कितना होता है, कब करना चाहिए रिचार्ज. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेड एक्यूमुलेटर. विदाउट दिस, अगर हमको इस सेल को करना है रिप्रेजेंट, तो इसका कैसे आएगा रिप्रेजेंटेशन. तो लेट्स सी पीवी सॉलिड इन कॉन्टैक्ट विथ PbSO4. अभी आपको पता है PbSO4 यहाँ पे आ रहा है, सो PbSO4 यहाँ पे आएगा. देन PbSO4 is solid. Then 38% of H2SO4, and again there is the PbSO4. Yes. Then there is PbO2 lines. In this manner, we have to write that representation. PbSO4 है, PbO2 भी है, जो कि होगा सॉलिड, और बाद में फिर आएगा यहाँ पे Pv. So this nothing but the cell representation. इसको आप चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं आपके बुक में. अगला जो सेल हमारा है वो है फ्यूल सेल. डायग्राम मैंने निकाला है ऑलरेडी इसका. नाउ व्हाट आर द फ्यूल सेल्स? द सेल्स, आई मीन द गैल्वेनिक सेल्स, in which the energy of combustion of a fuel is changed to electric energy are known as fuel cells. The galvanic cells in which energy of a combustion of a fuel is changed to electric energy are known as fuel cells. See, in such a kind of a cells, reactants we have to supply continuously from the outside. That's why this type of a cell is different than the other type of galvanic cells. जैसे हमने देखा. So reactant we have to supply continuously, and this cell will work continuously. In this cell, mostly the fuels used are, yes, hydrogen gas, then methanol, they can be used as a fuels. So अभी ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा है डायग्राम निकाला है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन टाइप ऑफ फ्यूल सेल, जिसमें जो है हाइड्रोजन it will act as a fuel cell, fuel, and the oxygen, I mean H2 gas, is acting as a fuel, and oxygen is used as an oxidizing agent. In this solution, we can use here hot, actually in this cell we can use here hot KOH solution. KOH, you know, that is an example of a strong base. You can also use here NaOH, that is a sodium hydroxide. It's again a strong base. Now fuel cell का अगर हम देखेंगे, this is the construction. In this way we have to do. Fuel cell consists of 3 compartments. In the middle compartment, we have to take here hot KOH solution. So this is the middle compartment. Anode, it consists of, yes, porous carbon electrode with platinum. Porous carbon electrode with platinum, in which H2 gas enters. From this H2 gas will enter in this, and this will be nothing but anode. Porous carbon electrode with platinum, in which H2 gas is continuously supplied. It will act as anode. Cathode consists of porous carbon electrode with platinum, in which, yes, here
we have to pass oxygen gas continuously. So oxygen gas will enter in the cathodic compartment and hydrogen gas will enter in a anodic compartment. So as I told you earlier also, H2, I mean hydrogen gas, it will act as a fuel, and oxygen, it will act as an oxidizing agent. Reactants will be supplied continuously. So in this way we had to make its construction. Now let's see how the working of the fuel cell takes place. So working, एक बात होता है, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी वहां पे होगा एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन. अभी यहां पे कौन है, H2 गैस. सो हाइड्रोजन गैस, it is get oxidized. Yes, so there is a formation of H2O. Now from the KOH solution there is a liberation of OH minus ion. यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि यहाँ पे लगेंगे 4 OH minus ions. Ions के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा aqueous phase. So H2 plus 4 OH minus. You know that in case of oxidation reaction there will be loss of electron. So we have to write here electrons. देखो यहाँ पे अगर है 4 तो हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे 4. ओके, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स should be also equal to 4. Then the reaction will be balanced as well as the charges will be balanced. So ये रहा रिएक्शन जो कहां पे होगा, ये होगा एनोड पे. So this reaction, first of all, at anode we have to write this reaction. ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, सॉरी H एटम्स. सो 4 to 8 हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा 2. नाउ सी 2 to 4 plus 4 8, and now both oxygen as well as hydrogen and the charges, they are also balanced. Minus 4 charges here and there is also presence of 4 electrons. So charges भी यहाँ पे balance है. So this will takes place, this reaction will takes place at anode. We can say hydrogen gas is get oxidized to water in case of anode. Now at cathode, कैथोड पे पता है आपको जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने यहाँ पे गेन होने वाले हैं, और यहाँ पे जो कैथोड पे जो रोल रहेगा ये है ऑक्सीजन का. सो रिमेंबर यहाँ पे ये 4 OH माइनस फैक्टर जो है दैट वे टू टेक इनटू कंसीडरेशन, ये आएगा इस तरह इसका. तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 OH माइनस ऑक्सीजन गैस, साथ ही साथ यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे और हमें यहाँ पे H2 भी लेना पड़ेगा. और कैसे, यस, यहाँ पे रिएक्शन देखिए जरा चेक करके बैलेंस है या नहीं है. H यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे 2 लिख रहे हैं. सो वी हैव टू राइट हियर just twice. H2O is obviously in a liquid phase and now this reaction will take place. ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है. 2 to 4, here also 4. So this is nothing but the reduction reaction. If you add these two reaction, then क्या मिलेगा हमें, दोनों को ऐड करने के बाद आप देख सकते हो 4 OH माइनस यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे है 2 H2O, यहाँ पे से 4 में से 2 तो चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, क्या बचता है. सो there is a formation of twice H2 gas plus O2 gas obviously यहाँ से ये 2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जो 2 H2O बचते हैं that we have to write on this side. So twice H2O liquid, that will be made a reaction in H2O2 kind of fuel cell. So water can be obtained as a byproduct.
along with the electric energy. So fuel cells are very much useful in this manner. Water can be obtained as a byproduct. Electric energy also generated. So fuel cell will work in this manner. The cell potential of this kind of a cell is 1.23 volt. So this is the cell potential for the fuel cell. Now fuel cell has certain advantages. क्या है वो? One by one we have to see. First of all, आप यहाँ पे देख सकते हो, reactants are supplied continuously and products are get removed. From this here we have to remove water. Hence this cell will work continuously. This cell will work non-stop. So cell works continuously. तो ये है continuous type of cell. Yes. Then the next one, this cell, that is a fuel cell, it is much more efficient. You know, thermal power plants जितने भी होते हैं, thermal power plant का होता है 40% होता है इनका efficiency, but the fuel cell they have almost 70% efficiency. If you see, exactly double of the thermal power plants. So they are much more efficient. Fuel cells are much more efficient. Third thing is that they does not cause any kind of pollution. So there is no pollution takes place in case of a fuel cell. So this is nothing but the three are there advantages. साथ ही साथ इसके कुछ है disadvantages. Now see, sometimes due to the reversible behavior of the fuel cell, voltage drops less than 1.23 वोल्ट. तो यहाँ पे ड्रॉप होता है, वोल्टेज कम हो जाता है 1.23 वोल्ट से, रिवर्सिबल बिहेवियर की वजह से. सो वोल्टेज विल ड्रॉप लेस देन yes 1.23 वोल्ट. Second thing, this cell will work continuously if the reactants are continuously fed and products are continuously removed. समझो, अगर इन दोनों में से एक भी गैस का अगर कनेक्शन रुक जाता है तो सेल अपना काम करना छोड़ देगा. So we have to almost and continuously supply the reactant so that the cell will work continuously. Now the next thing, NaOH जो होता है, NaOH is corrosive, dangerous, harmful. Similarly, यहाँ पे जो होता है हाइड्रोजन गैस, it may be also hazardous. It's hazardous, dangerous gas. You know that H2 can catch fire very easily, having high calorific value. तो ये सब है इसके disadvantages. कहाँ पे यूज होता है फ्यूल सेल? Yes, in the space programs. You know that in the space programs there are also use of the fuel cell. Then in the future it may not surprise you if there are with the use of fuel cells in the hospitals or in the remote places. तो ये आने वाले समय में पॉसिबल है कि जहाँ पे बहुत सारे रिमोट एरियाज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग नहीं लेके जा सकते, तो ऐसे जगह पे फ्यूल सेल ज़्यादा यूज होगा. सो वहाँ पे भी ये यूज होता है फ्यूल सेल. सो वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल सेल्स आर अवेलेबल एंड यू कैन सी द एप्लीकेशंस इन द टेक्स्ट बुक एज वेल. सो इसी के साथ जितने भी हमारे सेल्स है
ये अभी हमें खत्म होते हैं। अब अभी जो टॉपिक अगला है, इट इज नथिंग बट EMF सीरीज। ये इतना पूरा लिखने के बाद मैं चाहूंगा कि आप वो जो सीरीज दिया है EMF सीरीज, आपके टेक्स्ट बुक निकालिए आप लोग। उसके आगे टॉपिक हमें अगर देखना है तो आपके सामने वो सीरीज होना बहुत जरूरी है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। टिल दैट आई विल वेट फॉर सम टाइम एंड देन आपको नोट डाउन पता है कैसे करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये नोट डाउन करने के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड जस्ट होल्ड द टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट लुक फॉर द EMF सीरीज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखते हैं उसके बारे में। देखिए, जो टॉपिक हमारा अभी का टॉपिक है वो है EMF सीरीज। आपके पास टेक्स्ट बुक में दिया है ये सीरीज, उसको आपको देखना पड़ेगा। क्या होता है ये EMF सीरीज? इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल series. So this EMF series, it consists of different electrodes, and if you see properly, these electrodes, they are arranged in order of their standard reduction potential values. So the arrangement of electrodes in order of decreasing their standard reduction potential values is known as electrochemical series, is also known as EMF series. If you see properly the series, उसके सबसे लास्ट में जो दिया है, आई मीन लास्ट के कॉलम में, वो है E नॉट वैल्यूज। इसमें सबसे पहले क्या दिया है? यस, F माइनस, देन सिंगल वर्टिकल लाइन which indicates direct contact, and then there is a F2, and again there is a single vertical line and platinum. जो आगे दिया है इसका E नॉट वैल्यू, ये वैल्यू है प्लस 2.87। जैसे जैसे आप देखोगे लास्ट वाले कॉलम में, आपके बुक में देखिए और सुनिए, द वैल्यू विच इज एट द टॉप, इट्स अ प्लस 2.87, एंड फ्रॉम दैट द वैल्यूज आर गोइंग डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इट विल बिकम 0 फॉर हाइड्रोजन। इट्स नथिंग बट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहां तक जो है H2 की बात करेंगे, तो यहां तक वैल्यूज आर बिकमिंग लेस एंड लेस, इट विल बिकम 0, एंड इट ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स वैल्यूज दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर निगेटिव। देखिए, हाइड्रोजन के नीचे जो दिया है वैल्यू, वो है किसके लिए है? वो Pb2 प्लस इन कॉन्टैक्ट विथ Pb। क्या है उसका वैल्यू? यस, वैल्यू इज द वैल्यू फॉर E नॉट, that is nothing but standard reduction potential value. See, as per the IUPAC norms, ये E नॉट के वैल्यू जो होते हैं, that is standard electrode potential के values, these are the values of, you know, standard reduction potential. आप देखो जितने भी रिएक्शन दी है बीच में, all that reactions are nothing but रिडक्शन रिएक्शंस, क्योंकि इन सभी रिएक्शंस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। तो सो इन द मिडल कॉलम यू कैन सी दैट ऑल द रिएक्शंस आर शोन ओवर देयर, एंड ऑल दोज रिएक्शंस आर नथिंग बट रिडक्शन रिएक्शंस, क्योंकि इन सभी रिएक्शंस में गेन ही हो रहा है। सो अगर आप सीरीज को देखोगे प्रॉपरली, जो सबसे का
टॉप का वैल्यू है वो है +2.87, जो सबसे लास्ट वाला वैल्यू दिया है इट्स नथिंग बट Li प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट। और क्या है उसका वैल्यू? उसका वैल्यू है -3.045। ये है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। सो इन दिस वे यू कैन सी different electrodes are arranged in order of decreasing their standard reduction potential values. ओके, अभी ये जो दिया है सीरीज, आप यहां पे देख सकते हो कि वहां पे दिए हैं एरोस। One arrow is going in the downward direction from top to bottom as there is a decrease in the values of standard reduction potential. तो यहां पे क्या हो जाएगा? Increase in the strength of reducing agent। ऊपर से नीचे अगर आप आओगे then you can see there is increase in the strength of reducing agent। ऊपर से नीचे अगर आते हो there is increasing strength of reducing agent। एक एरो दिखा रहा है हमें as we go from bottom to top there is increasing strength of oxidizing agent। EMF सीरीज को गौर से देखने के बाद आपको उसको समझना होगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। स्पेशली दे विल गिव यू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनॉर वैल्यूज, और फिर उनको आपको अरेंज करना होगा एज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर मे बी रिड्यूसिंग एजेंट। दे मे ऑल्सो आस्क यू इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है? आपको एक ही ध्यान में रखने का है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ई नॉट वैल्यूज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, लेकिन देयर इज इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज वी मूव डाउन। देखो ई नॉट के वैल्यू ऊपर से नीचे क्या हो रहे हैं? वैल्यूज कम हो रहे हैं, बट उससे क्या हो रहा है? देयर इज इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑब्वियसली अगर हम मतलब मुझे जो कहना है आपसे कि आपको यही समझना पड़ेगा कि ऊपर से नीचे आते वक्त वैल्यूज दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर नेगेटिव। एट द सेम टाइम देयर इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इस सीरीज को पढ़ो। चलो हम एग्जांपल देखते हैं कि इस सेल का हमें क्या यूज होता है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? देखिए वहां पे बहुत सारे वैल्यूज दिए हैं। वी कैन फ्रॉम दैट सीरीज वी कैन फाइंड आउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट by comparing their E0 values. So, relative strength of oxidizing values we can decide। दोनों अगर आपको दिए हैं अलग अलग इलेक्ट्रोड्स, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये आपको समझ में आएगा। सो इट विल हेल्प यस टू फाइंड आउट, टू डिटरमाइन relative strength of oxidizing agent। relative strength in the sense कंपैरिजन करते हैं हम वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ यस E naught values। secondly it is also useful to compare the relative strength of reducing agents on the basis of again E naught values। then it is also useful to calculate E naught cell value। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम यहां पे निकाल सकते हैं। चलो हम एग्जांपल लेते हैं डैनियल सेल का। आपको पता है इन केस ऑफ डैनियल सेल
ई नॉट सेल इज इक्वल टू, जरा डैनियल सेल को अपने सामने लाइए, आपके सामने या फिर डायग्राम देखिए, वहां पे क्या था, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड एज वेल एज कॉपर इलेक्ट्रोड. सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन जो कि होता है एनोड पे, प्लस ई नॉट रिडक्शन जो कि होता है कैथोड पे. आपको पता है कि ये सीरीज में हमें जितने भी वैल्यूज दिए हैं, ये सब वैल्यू कौन से हैं? ये वैल्यूज है ओनली रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू. तो ये इसकी जगह पे मुझे रिडक्शन का लिखना पड़ेगा. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि इसका जो वैल्यू आएगा इट इज इक्वल टू माइनस यस ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड. देखिए ई नॉट ऑक्सीडेशन एट, सॉरी यहां पे एनोड ही आएगा, यस ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन एट एनोड इज इक्वल टू माइनस ई नॉट रिडक्शन एट एनोड एज वेल. ये हमें क्यों करना है पता है? क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के ही वैल्यूज मिलेंगे, देंगे, इसलिए हमको यहां पे करना है कन्वर्ट उसको. आपको पता है ये है जिंक वाला एंड देन ई नॉट रिडक्शन जो ऊपर है मैंने उसको जैसे दिया है वैसे ही लिखा है. चलो मैं अभी काम करता हूं, पहले मैं लिखता हूं उसको ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एट एनोड. ये मैंने इधर लिखा, इसको मैं इधर लेकर आया. आपको पता है कैथोड कौन सा था? वहां पे कॉपर, और यहां पे क्या था एनोड? ये था जिंक. सो देयरफॉर ई नॉट सेल इज इक्वल टू, यस कौन सा है वहां पे कैथोड? कॉपर का वैल्यू अगर आप चेक करोगे प्रॉपरली तो देखिए कहां पे है कॉपर. यस यू कैन सी कॉपर यहां पे आपको दो दिए हैं, एक है Cu2 प्लस देन Cu, दूसरा है Cu2 प्लस कॉमा Cu प्लस. वो नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए Cu2 प्लस इन कॉन्टैक्ट विद Cu, जिसका वैल्यू है प्लस 0.337. सो जो वैल्यू है इसका, क्या वैल्यू है इसका? 0.337 माइनस ई नॉट रिडक्शन एट एनोड. एनोड कौन सा है यहाँ पे? जिंक. ये वैल्यू कौन सा दिया है यहाँ पे? रिडक्शन का. अभी यहाँ पे आपको देखना है कि जिंक का वैल्यू कहां पे दिया है. देखिए 1 2 3 4 5 6 7, नीचे से 7 नंबर पे अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो आपको दिखाई देगा का यहाँ का जो वैल्यू है वो है माइनस 0.763, माइनस 0.763. यस, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलता है? 0.337 प्लस 0.763 क्या आएगा? इट्स इक्वल टू 1.1 ई नॉट से 1.1 वोल्ट. ये हमने निकाला फॉर डैनियल से. इस तरीके से हम लोग किसी भी सेल के लिए ई नॉट सेल का वैल्यू निकाल सकते हैं. और इससे हमें पता चलेगा और एक बात कि दिया हुआ जो है सेल, वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो उसका ई नॉट सेल का वैल्यू आएगा पॉजिटिव. अगर वैल्यू आता है नेगेटिव तो समझो the cell is non-spontaneous, I mean the reaction is non-spontaneous and cell
डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, तो ये है रिगार्डिंग द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. एक बार वापस उसके जो पॉइंट्स दिए हैं टेक्स्ट बुक में, इनको पढ़ लीजिएगा. और ये जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं आप लोगों को, अगर इसमें कुछ डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हो. ठीक है. इसके बाद जो टॉपिक बचता है इट्स करोजन. करोजन आपको पता है, इट इज नथिंग बट द डिटोरिएशन ऑफ द मेटल सरफेस ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस like water vapors, then gases. So different gases are there. So all this slow destruction or deterioration of the metal surface by means of the environmental forces, it is nothing but known as a corrosion. So corrosion is that process. Now corrosion में उसको कैसे प्रिवेंट करना है आपको पता है होंगे इसके तरीके. Corrosion can be prevented by applying the anti-rust solution, rusting of iron. देखो ये corrosion रोकना भी बहुत जरूरी है. अगर corrosion होता है तो it's very dangerous for that because metals they may because it may also cause accidents. तो ये यहाँ पे हो सकता है. तो corrosion कैसे करते हैं प्रिवेंट हम लोग? By using anti-rust solution, by coating the metal surfaces, by painting. We can also carry out the process like galvanizing, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम बेस मेटल को जिंक से करते हैं कोट. जैसे कि you must have seen nut bolts, then screws जो हम लगते हैं तो ये होते हैं galvanized. So it's a coating of zinc metal on the surface of base metal like iron. या फिर we can also carry out tinning. Tinning is a process. You know that. टिनिंग का पता है आप लोगों को? कभी सुना है आपने देखा होगा कुछ लोग मतलब ऐसे घूमते रहते हैं और ऐसे गलियों में और बोलते हैं कि भांडरना कलई करून मिळेल. कलई, तो कलई जो हम करते हैं बर्तनों को, दैट इज नथिंग बट टिनिंग. इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिविंग द लेयर ऑफ टिन मेटल ऑन द बेस मेटल. सो इट इज नोन एज टिनिंग. टिनिंग के बाद में तो ये हो गया galvanizing, then tinning. We can also carry out the process known as anodizing. You know that aluminium का जो होता है मेटल, उसके सरफेस पे होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर. So because of that, aluminum oxide is protective layer. That's why it becomes anode at that time. So अगर हम इस तरीके से करेंगे, इसके ऊपर लेयर देंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, then we can also prevent the corrosion. तो ये आप पढ़ सकते हो उसमें कुछ